टर्म्स हैं वो हम लोग सीख चुके हैं। बॉन्ड में हम लोग ने क्या क्या देखा था, ये लास्ट हम लोग ने देखा था क्या, ये क्वेश्चंस। अच्छा, ये क्वेश्चंस किसने बनाए हैं? ये क्वेश्चन था how many of you have actually solved these questions? How many of you actually solved these questions? Have Hardik, yes sir, solved sir, Amit sir. Okay, okay. So you solved. What is your answer for these questions? What is your answer? Hardik, tell me. Amit, tell me. 2.5. Sahi answer. Hardik, what was your answer? 2.5 is the right answer. Solve, but it's look a lot time. Why? You don't need to take so much time, Baba. So do one thing. If whatever effort that you have put into solving these questions in copy or whatever in paper sheet, just show me, share me. I'll check where you can reduce the steps. See, right? 1.25 only, or 2.5 is right? So no, it's a 12.55%. Okay, most of you have already solved these questions. आप लोग ने बहुत सारे में इन्होंने solve कर लिया है 12.5% निकाला है। तो इसको मैं डिस्कशन, अगर आप बोलेंगे डिस्कशन करने के लिए तो क्या आपके आंसर सही है तो इसको डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है? तो आप मुझे बता दें। अच्छा, ये क्वेश्चंस मैंने दिया था आप लोगों को असाइनमेंट में यील्ड टू मैच्योरिटी निकालने के लिए। चलिए सबसे पहले मैं पूछता हूं, अभी आप लोग स्पीकर ऑफ कीजिएगा अपना, ऑन कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ठीक है? चलिए वन बाई वन बताइए कि किसने किसने ये सॉल्व किया है क्वेश्चंस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन फास्ट? टाइप फास्ट और अनम्यूट। Didn't get any answer, Baba. Should I unmute you and start calling your name? Do you want that? Solve, Hardik, solve. Okay, fine. Hardik, solve. Okay. So what was your not done, sir? Amrik, why? Didn't get it? Tell me the reason fast. And apart from Hardik and Amrik, what about you? Not done, sir? No, sir. Only Amrik and Hardik are the participants. Rest are unmute. Sir, please explain once again PVFI calculation. We'll tell you, but at the end of the session. Or else do one thing, you watch the video. If you don't get it, I will tell you. Anyone who is not comfortable in English, tell me fast. Are you all comfortable in English? और हिंदी में कंफर्टेबल है आप? आप लोग अगर बात नहीं करोगे, ठीक है हार्दिक, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं मिला करके बोलूंगा। आप लोग अगर बात नहीं करोगे, चैट नहीं करोगे, तो इट्स रियली मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आई डोंट फाइंड एनी फन, आई एम नॉट एंजॉयिंग व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग। See, this is a one-to-one class. Else, I'll send you a recorded video. Just watch the video if you don't want to talk to me. See, I am a different kind of teacher. I want to interact with my student. If you have any question, ask me. I'll tell you. But don't do like that. You just put it on mute and don't listen to the tutor or teacher. Participate whenever I ask you. Just unmute and talk to me.
मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से, इसलिए मैं इस वक्त क्लास रखा 9 to 11। सोचो इस वक्त मैंने क्लास रखा, वो इसलिए कि आप लोग से बात कर सको, कोई प्रॉब्लम है आप बात करो। ओके, आई टेल यू वंस अगेन, डोंट वरी। ओके गोपाल, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। सो सी पीबीआईएफ मैंने बता दिया था, चलो मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ फास्ट। पीबीआईएफ है, पीबीआईएफ, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है, द फुल फॉर्म ऑफ पीबीआईएफ है। पहले ये देखो कि ये क्वेश्चंस है, दिस इज द क्वेश्चंस। A bond whose par value is rupees 1000 bears a coupon rate of 12%, okay, and has a maturity period 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of the bond? Well, you when you are solving any question on a bond, you want few variables, few see, जब कभी भी आप बॉन्ड सॉल्व करते हैं, इस तरह का बॉन्ड का वैल्यू निकालते हैं, when you want to bond value, so you need certain information regarding bond. So first, maturity period, second, let's face value. Your voice is not audible and loud. सर वॉइस ऑडिबल नहीं है सर आपकी। Is it okay? अभी ठीक है? सर अब थोड़ा बेटर हुआ है सर। 1 minute. Can I take a 1 minute pause so that I can rectify Please. and solve this? प्लीज सर, प्लीज सर। Fine. Give me 1 minute. Am I audible now? Clear, loud and clear? Yes, Yes, sir. sir. Much better. Fine. Okay, fine. So what I was telling you,
Yes. When you want to solve any bound question, especially bond valuation, you need certain information. Certain information first you need to find face value, whether the face value is given or not. So first you need to find face value, then coupon rate. Coupon rate. Okay, then market rate, market value. Then required rate of return. Okay, required of rate of return. ये चार पैरामीटर है. These four parameters or information you require in order to solve bond valuation questions. तो ये पूरा बॉडी ये चार पैरामीटर पे. फर्स्ट आपका पार वैल्यू विच इज फेस वैल्यू, ये दूसरा कूपन रेट, सेकंड इंफॉर्मेशन कूपन रेट, एंड देन मेच्योरिटी
सॉरी, देयर वाज अ इशू विद द इंटरनेट में कुछ इशू था, इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। नो वरी। सो क्या मैं बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि बॉन्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करने आपको इतने पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या क्या? एक, फेस वैल्यू, कूपन रेट, मार्केट वैल्यू, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, मैच्योरिटी। इसमें से कोई एक वैल्यू नहीं होगा जो आपको सॉल्व करना है। समटाइम in an advanced level, when you go to in CID syllabus, you find there is a two variable information required on bond calculation. So आप क्योंकि कैलकुलेशन पे है, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल मिसिंग रहेगा किसी एक क्वेश्चन से, किसी एक पैरामीटर में। So sometime face value, coupon rate, maturity period, required rate of return, 10%, value. Value is market value, present value. ठीक है, required rate of return is yield to maturity, इसको ही बोलते हैं हम लोग। यहाँ तक क्लियर है सबको? सारे लोग को क्लियर है यहाँ तक? यस सर। वेरी गुड। अब देखो, PVFI है, यहाँ जब ये सॉल्व करते हैं ना, तो मैंने कहा था ना कि देखो इसको सॉल्व करने के लिए ना बॉन्ड एक, मैंने ये दिखाया था आपको, ये एक बॉन्ड का मैंने ये दिखाया था। ये क्लियर है सारे लोगों को? इसमें मैं डिस्कशन करूं? ये क्लियर है कि आगे बढ़ो? Yes, sir. ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ दोबारा नहीं। तो एक काम करते हैं ना, जो ऐश्वर्या जो PBIFA है और PBIF है, उसको आप एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद फिर मैं डिटेल से उसके बताऊंगा। ठीक है, आप वीडियो देखने के बाद अगर कोई नहीं आता मैं बता दूंगा। चलो मैं आगे बढ़ाता हूँ। हाँ, तो मैं ये था कि ये जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने दो मेथड से सॉल्व किया। एक जो बेसिक मेथड से प्रेजेंट वैल्यू निकाला हम लोगों ने, बेसिक मेथड से प्रेजेंट वैल्यू मतलब बॉन्ड का वैल्यू निकाला हम लोगों ने एक बेसिक मेथड से, यहां से यहां तक एन्युटीज लिया। ठीक है, अब 3 इयर्स के लिए है तो 3 इयर्स के लिए हम लोगों ने इसका एन्युटीज टर्म निकाल दिए, और उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू जब मिलेगा उसको तो ये निकाल दीजिए। इसको सॉल्व करने के लिए एक यहां पर देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये एक्चुअल में जो फॉर्मूला है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? न्यूटन रैमसन। ये न्यूटन रैमसन फॉर्मूला है। ये एक तरह का फॉर्मूला ट्रायल एंड एरर है, यील्ड टू मैच्योरिटी। इस फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व करते हैं बॉन्ड का वैल्यूएशन। ठीक है, अब देखो ये वाला जो पार्ट है ना, इससे घबराना मत, ये सिग्मा है, इसका मतलब है कि इन दोनों को जोड़ना है। दिस इज कॉल्ड सिग्मा, इट मींस दैट इज द समेशन ऑफ बोथ द टर्म। इट इज मेयर अ सिंबल, इट इज नथिंग बट इज नथिंग रिलेटेड टू एनी कैलकुलेशन, दैट्स द सिंबल दैट यू नीड टू सम। तो इसको देख के घबराना मत कि ये क्या है, जो मतलब मैथ्स के बैकग्राउंड के नहीं है, इंजीनियर नहीं, स्पेशली आर्ट्स है या कॉमर्स है उनके लिए। तो देखो इसको, इस फॉर्मूले को हम लोग न्यूटन रैप्सन कहते हैं। अब देखो ये जो है, ये पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? ये वाले पार्ट को PBIF से सॉल्व करते हैं, और ये वाले पार्ट को PBIFA से सॉल्व करते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये एन्युटी है। ये एन्युटी क्यों है? ये एन्युटी क्यों है? क्योंकि ये वाला पार्ट जो है, ये देखो, ये जो पार्ट है इसको ही हम लोग एन्युटी बोलते हैं। इसलिए इस पार्ट को हम लोग PBIFA से सॉल्व करते हैं और इसको PBIF से सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मैंने ये जो बोला था आपको,
ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ये इसका आंसर 12.5% है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, ये जो क्वेश्चंस मैंने दिया था इसमें किसको किसको प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को समझने में। इसमें आपको क्या निकालना है, यील्ड टू मैच्योरिटी बाय टीएम। मतलब कि आपका ये वैल्यू दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये वाले पार्ट को आपको फाइंड करना है, यील्ड टू मैच्योरिटी। आई दिया हुआ है, आई क्या है, कैश फ्लो है, क्या है आई कैश फ्लो। एफ क्या है, फेस वैल्यू, ये दिया हुआ है। पी क्या है, 1 रहेगा हमेशा। एन क्या है, 10 ईयर्स है। और कूपन रेट जो इसमें ये यहाँ पे आएगा फेस वैल्यू से सॉल्व होकर के, कूपन रेट ये 8% है। ये एक्चुअली कूपन रेट ये है आपका, ये तो मार्केट प्राइस है, सॉरी दिस इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। तो यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ये दिया हुआ है, कूपन रेट ये आपका 8% है, दिस इज कूपन रेट। Okay, and this is face value. Okay, this is YTN, KD, N is the maturity period. अब देखो इसको सॉल्व करने में बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया इसे, कितने लोगों ने जेन्युइनली इसको सॉल्व किया है और कितने लोगों ने जस्ट बिकॉज की अब कंफर्म करना है वो डाल दिया है। कहीं ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम हुआ है सॉल्व करने में। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है ये बहुत इजी है, दिखता बहुत डिफिकल्ट है। मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हो। तो मुझे बताओ कि कितने लोगों ने, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सॉल्व बट ट्राई टू सॉल्व बट इट डिड। पायल आर यू देयर, पायल, दीपाली आर यू देयर, ओके, दीपाली आर यू देयर, हैव यू ज्वाइन। गोपाल प्रॉब्लम है, ठीक है। सी द गर्ल try to solve it, Hardik, but what happened, whether you solve it or not, right, but what happened actually, देखो ये देखने में डिफिकल्ट है भी एक्चुअली। इसको सॉल्व करने जाओगे ना तो इस फॉर्मूले से आप सॉल्व करोगे इसको, ये फॉर्मूला भी मैंने बताया। इस फॉर्मूले से जब सॉल्व करोगे YTM, YTM का मतलब ये है कि जो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है और बॉन्ड का मतलब ये बोल रहा है कि मार्केट प्राइस 900 है, हमारे पास मार्केट प्राइस 900 है, बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो कितना है 1000, ठीक है। मार्केट प्राइस 900 है, मैच्योरिटी दे दिया है 10 ईयर्स, कूपन रेट दिया है कितना 8%, 8%। तो जब मेच्योरिटी होगा, आखिर ये जो मेच्योरिटी 900 दिया हुआ इट इज गिवन 900, तो व्हाट इज द YTM, एग्जैक्ट YTM निकालने के लिए कोई फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। आपको एक वैल्यू लेना होगा, उस वैल्यू को पुट करना होगा, उसके बाद देखना होगा वैल्यू आ कितना रहा। तो जैसे देखो ये क्वेश्चन है, मार्केट रेट कितना दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू 900, मार्केट प्राइस 900 दिया हुआ है, कैश फ्लो कितना हो रहा है, कैश फ्लो कितना हो रहा है 8%, 1000 पे 8%। नाउ फेस वैल्यू कितना है 1000, T 1 है, और मेच्योरिटी वैल्यू जो है उसका मेच्योरिटी पीरियड वो है 10 इयर्स। इस चीज को KD को फाइंड करना, यानी YTM को फाइंड करना।
तो हम लोग PVIF फॉर्मूला को याद होगा जो हम लोगों ने पिछली बार उसको पढ़ा। तो अब क्या होगा, इसमें आप कोई वैल्यू पुट कर लो, क्योंकि 8% में दे रहा है, 8% उसका कूपन रेट है, तो मार्केट वैल्यू क्या हो सकता है, मतलब YTM क्या हो सकता है, मेच्योरिटी कम है, मतलब मेच्योरिटी मार्केट जो वैल्यू है वो 900 है, मार्केट 900 है, इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट वैल्यू जो है उसमें, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट वैल्यू 900 है, फेस वैल्यू 1000 है, ये इससे कम है 100 रुपीज। तो कूपन रेट क्या होगा, ये कूपन रेट यहाँ पे 8% है, तो YTM हम कितना लें, तो YTM शुरू में आप ज्यादा लो, 10 है ना, उससे 2% ज्यादा लो, ऐसा नहीं है कि इसमें 15% लो, ट्रायल एंड एरर मेथड। तो इट्स नॉट लाइक कि सर मैं कुछ भी ले लूं, नहीं, कुछ भी आप नहीं कर सकते, वो तो आप पे है, लेकिन आप हमेशा जैसे अगर मान लेते ये अगर ये 1000 की जगह 1100 होगा, तो आप 8% की जगह 7% से शुरू करो, क्योंकि 900 है तो आपको ऊपर लेना पड़ेगा, तो आप एक काम करो 10% से शुरू करो, 10% पे इसका PVIF एंड PVF निकालो, उसके बाद देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इस पर्टिकुलर बॉन्ड का 10 साल के बाद इसको रखने में, मेच्योरिटी होने में कितना कॉस्ट लग रहा है। तो ये जो वैल्यू है, ये 10% जब आप निकालोगे तो 877 आएगा, ठीक है, 877 आएगा 10% पे। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है वो 900 से कम है, दिस वैल्यू इज एक्चुअली लेस देन 900 मार्केट वैल्यू। तो हम लोग को ट्रायल एंड एरर मेथड है, एक वैल्यू कम लेना और एक वैल्यू ज्यादा लेना। बॉन्ड बॉन्ड जब बॉन्ड कैसे होता है, बॉन्ड और बॉन्ड के जो वैल्यूज होते हैं वो इनवर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड का अगर मान लेते हैं कि YTM अगर बढ़ता है तो बॉन्ड की वैल्यू घटती है, YTM घटता है तो बॉन्ड की वैल्यू बढ़ती है, ओके। तो यहाँ पे एक वैल्यू हम लोग हायर प्राइस लेंगे, क्योंकि ये 10% रखने पे बॉन्ड की जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट प्राइस वो 10% में 877 आ रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक नीचे लेंगे तो बॉन्ड की वैल्यू ज्यादा जाएगी, एक वैल्यू और लिया हम लोग ने 9% पे, जब 9% पे लिया तो वैल्यू आई 935, अब 935 आई, ये वैल्यू आ गई। अब क्या होता है, एक फॉर्मूला और आता है जब इसको आप कंपेयर करते हो, ट्रायल एंड एरर मेथड है, तो ट्रायल एंड एरर मेथड में एक फॉर्मूला और होता है जिसको बोलते हैं लीनियर इंटरपोलेशन। इसमें क्या होता है, ये एक रेंज बताता है कि इस रेंज में क्या वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो अगर इस रेंज में आप जो वैल्यू आपको बॉन्ड के मार्केट प्राइस से ज्यादा दे, उस वैल्यू को आप यहां पुट करेंगे और फिर हायर को लोअर से माइनस करेंगे और इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो मोटा मोटी जिनका भी 9.5 9.6 आया है, इवन 9.7 गया है, तो उनका ये आंसर सही है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक समझने में कितने लोगों को प्रॉब्लम है? सर ये लीनियर इंटरप्रिटेशन का वापस से समझाएंगे ना, फॉर्मूला क्या है और वो कैसे सॉल्व करते हैं। सर द लास्ट पार्ट, द लीनियर इंटरप्रिटेशन वाला हाँ, ये देखो, ये जो फॉर्मूला। लीनियर इंटरप्रिटेशन है ना, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है जैसे कि आप ये बुक में भी आप देखोगे या कहीं पर भी देखोगे, ऐसे ही आप नेट पे भी चेक करना, ये जो है ये एक ट्रायल एंड एरर मेथड है। तो जो बॉन्ड के वैल्यू, आपको बुक पे नहीं मिलेगा, ये मैं बता रहा हूं आपको, बॉन्ड के वैल्यू से ऊपर प्राइस जो दे, जिसका वैल्यू बॉन्ड के वैल्यू से बिल्कुल नजदीक, जैसे मैं चाहता तो इसको 8% भी ले सकता था, लेकिन आपको कैलकुलेशन आपको क्लियर रखना है, सटीक रखना है, तो यू हैव टू चूज परसेंटेज which whose value is around between उसके बिल्कुल ही पास में हो, मींस नियर टू द
मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो ये 935 दे रहा है, यहाँ पे दे रहा है 877। लोअर साइड नहीं जाएंगे, अपर साइड जाएंगे, क्योंकि बॉन्ड का वैल्यू निकालना है। इस वाले को आप 9% रखो, क्योंकि आपको लग रहा है ये आसपास का ही है। उसके बाद ये वाले वैल्यू को लोअर, मतलब ये वाले जो पार्ट है ना, इसको आप इक्वेशन 2 समझो। ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। अब जो लीनियर इंटरपोलेशन है, इस मेथड से जब आप सॉल्व करोगे तो आपको जो हायर प्राइस दिया है उसको यहां पे रखना है, मार्केट वैल्यू से माइनस करना है, फिर आपको जो लोअर वैल्यू दिया उसको माइनस करना है, परसेंटेज निकालना। क्लियर? नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया, आना भी नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड है। इससे अच्छा होगा कि क्वेश्चन हम लोग छोड़ दें या फिर ऐसे ही गेस मार दें। नहीं लग रहा है ना? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? यस सर। कितने लोगों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन आएगा तो छोड़ दें? हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग दैट इफ सच क्वेश्चन यस सर, मी अमरीक, ओके ओके, इतना माथा पच्ची क्यों, दिमाग क्यों लगा? अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी खत्म नहीं हुआ, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये तो आपने सीख लिया। अब क्योंकि आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो जाहिर है जब मैं पढ़ाऊंगा तो कुछ ना कुछ आपको दूंगा जो आपके लिए वैल्यूएबल रहेगा। अभी एक चीज और डिस्कस करते हैं, चलो। एक आज मेरे पास एक सोल्यूशन आया नेट व्हाट्सएप पे, आप लोगों ने भी देखा इसको। अब मुझे कोई बता सकता है कि इसमें एरर क्या है? मैंने उस वक्त ये बोला कि बहुत अच्छा करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैं डिस्करेज नहीं करना चाहता और आप सारे लोगों को देखना चाहता था कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली हैव गॉन थ्रू इट एंड फाइंड एनी इनकरेक्ट पिक्चर और एरर। सो नन ऑफ यू हैज फाउंड एनी एरर। तो आपने में किसी ने आपने जवाब ही नहीं दिया। एक्चुअली इसमें एरर है। इसने जिसने भी एफर्ट लगाया, her name is Dipali. Dipali, are you there? Dipali, are you there? Message fast. Dipali, are you there? So seeing Dipali is not there. Fine, not an issue. दीपाली ने ये बनाया, अभी हम लोग ने वैसे ही किया। देखो गलती क्या हुई, ध्यान से देखना। इसने 900 लिया, फाइन, 80 भी लिया, फाइन, पीबीआईएफ भी निकाला 8% पे, ठीक है, 8% पे भी निकाला, ठीक है, 8% पे 10। अभी जो 8% पे इसने निकाला, हम लोगों का भी आया था उसके आसपास, 9 to 10 में सोचे थे। ये उसने इक्वेशन 1 माना इसको, फाइन। उसके बाद उसने फिर 10% पे एक दूसरा निकाला, ट्रायल एरर कि बिल्कुल मेरा यहाँ पे 1000 दे रहा है और मार्केट जो मेच्योरिटी है, मार्केट वैल्यू जो है वो 900 है। तो एक काम करते हैं, ये इस पे 100 दिया है तो परसेंटेज 8 है, परसेंटेज बढ़ेगा तो उसका वैल्यू घटेगा, है ना? तो इसने क्या किया, 10% रखा। 10% पे जब ये पीवीआईएफ निकाले तो इसका वैल्यू 877 आया। अब देखो गलती कहाँ की है, गलती यहाँ पे की है कि ये वैल्यू यहाँ पे 10% नहीं होगा। दूसरी बात है कि ये 877 यहाँ नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए 99। ये जो फॉर्मूला है इसकी जगह पे होना चाहिए माइनस और 999 माइनस 877 और इसकी जगह पे होना चाहिए 10% माइनस 8%। और वैल्यू सबसे नजदीक कौन सा दे रहा है, तो ऊपर दे रहा है, ये बहुत वास्ट वैल्यू है, 100 का फर्क है और इसमें जो फर्क है बिल्कुल कम है, इसलिए इसको 10% पे हम लोग नहीं ले सकते। ये उसने निकाल तो दिया मुझे, लेकिन ये देखो वैल्यू आसपास है लेकिन एक्चुअली में वैल्यू है नहीं, ठीक है? तो एरर इन राइटिंग लीनियर इंटर, यहाँ पे अमरीक
अब अच्छा वो इसकी बात कर रहे हैं, यस एग्जैक्टली, आपने जो बोला ना बिल्कुल। अब फिर से आते हैं उसी पे, सर कहाँ फंसा रहे, इससे अच्छा कुछ और पढ़ा लेते, इसमें क्यों पढ़ना, इस तरह का क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का छोड़ देंगे, और भी तो 98 मार्क्स हैं, ऐसा है ना, है कि नहीं है। सर आगे बढ़ जाइए, इससे अच्छा कम से कम 8 मार्क्स दूसरे साइड, 2 मार्क्स नहीं चाहिए, इतना दिमाग नहीं लगाने का। लेकिन ये आता है क्वेश्चन हमेशा आता है, YTM से आएगा और ये छोड़ेगा नहीं आपको CIB तक, CIB में भी आएगा। तो अब इसके लिए एक मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, बिल्कुल इजी। चलो ये फॉर्मूला है, ये तुमको मैं गिफ्ट दे रहा हूं। इस वाले फॉर्मूला पे इंफॉर्मेशन पुट करो, कैलकुलेटर है, पेन है, पेपर है, फॉर्मूला को डालो। सी यहाँ कितना है, सी इज इक्वल टू कितना है, कैश फ्लो कितना है, हर पर ईयर कितना है, 80 M इज इक्वल टू 1000, P इज इक्वल टू 900, N इज इक्वल टू 10 years। अब निकाल के देखो, इस पे फॉर्मूला पुट करो, गिविंग यू 2 मिनट्स, फॉर्मूला पुट करो, आंसर बताओ फास्ट, कितना आ रहा है, 9.57 9.57 कितना है यहाँ पे। और कभी भी आंसर देगा तो इतना क्लोज नहीं देगा, उसमें 2% 4% का डिफरेंस रहेगा। तो कभी भी इस तरह का जब क्वेश्चन आया YTM निकालने का, तो इंस्टीड ऑफ यूजिंग दोस फार्मूला यूज दिस फार्मूला, बट वो आपको समझना है, ये आपको बुक में भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी नहीं मिलेगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने खास आप लोगों के लिए निकाला है कि एग्जाम में टाइम नहीं होता, ना ही बच्चों को पढ़ने के लिए इतना टाइम है कि इतने कम टाइम में एक ही क्वेश्चन, देखिए जानना जरूरी है कि नहीं, तो पहले तो बेसिक जानना जरूरी है, so that you should understand what is logic behind the question and concept. Once you understand the concept, now you can implement in another formula. So ये फॉर्मूला जब कभी भी YTM निकालने के लिए आए, आप इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला मेथड, अप्रोक्सीमेशन मेथड। और वो कौन था, न्यूटन रैप्सन ट्रायल एंड एरर मेथड, वो ट्रायल एंड एरर मेथड था, और ये है अप्रोक्सीमेशन मेथड। इसको आप याद रखना, जब भी YTM निकालना है तो इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं, और ये बिल्कुल पॉइंट के आसपास देगा आपको, जैसे 9.56, लाइक आपका रूल 72 है, एग्जैक्ट फिगर तो आपको डबल करके नहीं देगा, लेकिन आसपास बता देता है। आप कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जो ऑप्शन होंगे ना, ऑप्शन में ऐसा नहीं देगा कि आपको 9.6 9.89 नहीं, कभी भी बॉन्ड के वैल्यूएशन के अगर इस तरह का YTM निकालने के लिए आएगा तो आपको जो ऑप्शन देगा वो ऐसे देगा, 9.6 7.89 8.6, ये इसका डिफरेंस रहेगा 1 का, और आपका जो भी वैरी करेगा ये 0.2 के आसपास वैरी करेगा, 1 से 2 पॉइंट के आसपास। समझ में आया। एक क्वेश्चन और ले लो, कोई भी सॉल्व कर लो इससे, ट्रायल एंड मेथड या कुछ भी आप इस पे डाल दो। बताइए, मैंने इतनी अच्छी बात बताई, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, नहीं समझ में आया लगता है। समझा सर। समझा, तो इसको रख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार करके स्टेटस में डाल लीजिए, दूसरे को ही बता दीजिए। सर बट सपोज अगर करंट मार्केट प्राइस अपनी पार वैल्यू से ज्यादा है, क्या तो भी क्या पॉइंट, अगर सपोज करंट मार्केट प्राइस प्रीमियम पे है और वो पार वैल्यू से ज्यादा है, प्रीमियम का केस है फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें 1000 का 900 हो गया, सपोज 1000 का 1100 हो जाता प्रीमियम का केस, तो भी क्या एग्जैक्टली, ये अगर आपका जैसे ये पार ये चेंज नहीं होगा, दो चीज कभी भी बॉन्ड में चेंज नहीं होगा, वो है इसका फेस वैल्यू, ये हमेशा सर सेम रहेगा, और कूपन रेट, ये जो कूपन रेट है ये कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा आपका, YTM और मार्केट वैल्यू,
ये दो चीज चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगी। इसके ही कारण ये ट्रेडिंग होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर ये नहीं रहेगा तो फिक्स है, नॉन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। इस कारण से ही निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो वो चीज हम लोग बाकी के थ्योरम में सीखेंगे, ठीक है। अंडरस्टूड सर। मैं ये पूछा था सर कि जो अगर सपोज चेंज नहीं होता तो ये जो है ना 0.4 ऑफ फेस वैल्यू प्लस हाँ, हाँ, 0.6 ऑफ, ये कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, ये ये चेंज होगा? कांस्टेंट रहेगा। ये कांस्टेंट। पूरा कांस्टेंट है। याद रखो कि इस फॉर्मूले में जो अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन में 0.4 क्या एम फेस वैल्यू, और प्लस 0.6 मार्केट वैल्यू। हाँ, मार्केट वैल्यू, ठीक है। ओके सर। पक्का समझ में आ गया? यस अंडरस्टूड, थैंक यू। क्लियर? ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके कोई दूसरे क्वेश्चन जो बुक में दिया हुआ उसको सॉल्व करके मुझे भेजिएगा और बताइएगा ठीक है कि नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? अब तो नहीं लग रहा ना यार, अब तो आ जाएगा सर, 2 मार्क्स ले आएंगे, टेंशन नहीं है। चलो, थ्योरम्स फॉर बॉन्ड्स। इसमें देखो बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, उतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उतने क्वेश्चन आते नहीं है। आएंगे क्वेश्चन इसी से आएंगे, उसको सॉल्व करने बैठोगे टाइम जाएगा, कोई फायदा नहीं है उससे। आएंगे तो 5 से 6 क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा है उससे 4 क्वेश्चन तो आराम से बना दोगे आप। आएंगे जो क्वेश्चन एक्चुअली में ये नहीं पूछेंगे कैलकुलेशन पूछ करके अब इसका थ्योरम बताइए, नहीं, वो समझने के लिए। तो थ्योरम क्या है, ऐसे समझो कि एक बॉन्ड है जिसका फेस वैल्यू, यार मेरे इंग्लिश की राइटिंग ठीक नहीं है, आई एम नॉट वेरी गुड एट हैंडराइटिंग, ओके, माय हैंडराइटिंग इज नॉट वेरी गुड, सो डोंट माइंड। कहीं मिस्टेक होगा तो बता दें। फेस वैल्यू दिख रहा है, विजिबल है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अब देखिए, फेस वैल्यू 1000, क्या फेस वैल्यू 1000 है। ऊपर ITM मेजॉरिटी, मार्केट वैल्यू, ठीक है। क्लियर है? अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है, और हाँ, ये बोल रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्वल द कूपन रेट, मान लेते हैं 5%, required rate of return 5% and the bond value is same, required return equal the coupon rate, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर सेम है तो वो क्या है, एट पार वैल्यू, कोई चेंजेस नहीं होगा उसमें, एट पार वैल्यू, ठीक है। एक थ्योरम खत्म कि अगर YTM और उसका कूपन रेट, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, इसका मतलब है वो एट पार है, कोई चेंजेस नहीं। क्लियर? एक थ्योरम। दूसरे थ्योरम में आओ, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द बॉन्ड्स वैल्यू इज बिलो इट्स पार। अब अगर ये 5% है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 6% है, ठीक है, तो जो मार्केट वैल्यू है ये 1000 से कम होगा, यानी कि ये 950 मान के चलो, 950 होगा। ये चीज ही बोल रहा है इस फॉर्मूले में कि द बॉन्ड्स वैल्यू इज बिलो पार वैल्यू, फेस वैल्यू से उसका कम होगा। कब? जब YTM ज्यादा होगा कूपन रेट से। क्लियर हो रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? बताना, जो मैं बता रहा हूं जिस तरह से वो क्लियर हो रहा है, तो कोई और चीज बताऊंगा, फास्ट जल्दी टाइप करो। क्लियर? ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तीसरा जो है वो क्या है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज लोअर देन द कूपन रेट, ये जो है
ये जो YTM है ये 5% है और ये 6% है। इसका मतलब ये होगा, क्या होगा कि if the required rate of return is lower than the coupon rate, तो bonds value is above par value। जब ये सिनेरियो रहेगा तो जो मार्केट वैल्यू है वो समझ लो कि 1050 होगा। ठीक है, ये 1050 हो जाएगा। अब थ्योरम, when the required rate of return is more than the coupon rate, ठीक है, the bonds discount reduces as it gets closer to maturity। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब required rate of return is more than the coupon rate, ये 6% है और ये 5% है, the bonds discount reduces at its closer to maturity। अब अगर ये बॉन्ड की जो मेच्योरिटी है मान लेते हैं 10 इयर्स है, ठीक है, अब अगर ये मेच्योरिटी है तो मान लेते हैं ये 8वें साल 8 इयर्स में जैसे ही नजदीक आ रहा है, दो साल और होल्ड करना है, तब इसका मुझे फेस वैल्यू मिल जाएगा, रिडेम्पशन हो जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है तो डिस्काउंट जो रिड्यूसेस है इट्स क्लोजर टू द इट्स मेच्योरिटी, कि अगर 2 साल में अगर ये बढ़ भी जाता है ना, इतना का डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब इसका जो डिफरेंस है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा मार्केट वैल्यू। तो जैसे अगर एक बॉन्ड है जहां पे ये सिनेरियो है, YTM आता है, तो ये मान लेते हैं 900 या 950 है, लेकिन जब 2 साल बचा हुआ रहेगा, 8 इयर्स में रहेगा, तो हो सकता है 99 ही घटेगा, ज्यादा का फर्क नहीं आएगा। तो द बॉन्ड डिस्काउंट रिड्यूस एट इट्स गेट्स क्लोजर टू मैच्योरिटी, ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा उस पे जब मैच्योरिटी के आसपास रहेगा। ठीक है, बट अगर ये 8 इयर्स की जगह पे मान लेते हैं कि 8वें साल में दूसरे साल या शुरू में ही बॉन्ड मिलता है, तो हो सकता है 900 हो, लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ेगा, इसका जो वैल्यू है वो इसके फेस वैल्यू के आसपास चल जाएगा, इसका मार्केट वैल्यू से। क्लियर यहां तक? क्लियर यहां तक? कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़े। सर सेकंड पॉइंट में और लास्ट पॉइंट में डिफरेंस मतलब कुछ रहेगा क्या? सेकंड पॉइंट में क्या है? इस वाले में, इसमें यस, इसमें क्या है? इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हायर देन द कूपन रेट, द बॉन्ड्स वैल्यू इज बिलो पार। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कूपन रेट से ज्यादा है, यही सिनेरियो है ना? द बॉन्ड्स वैल्यू इज बिलो इट्स पार वैल्यू, मतलब इसके फेस वैल्यू से कम होगा। अब देखो एक सिनेरियो ऐसे समझो, YTM 6% है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कूपन 5% है, फेस वैल्यू 1000 है। ठीक है, इस वाले केस में बोल क्या रहा है कि इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज दिस वन, इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज हायर देन द कूपन रेट, ठीक है, हायर देन द कूपन रेट, द बॉन्ड्स वैल्यू इज बिलो इट्स पार। तो इसका जब ये सिनेरियो रहेगा तो बॉन्ड का जो वैल्यू होगा, यानी कि मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू वो इससे कम रहेगा, मतलब 950 940 कुछ भी हो सकता, बट इससे कम रहेगा। ठीक है, अब ये यहां पे क्या बोल रहा है कि जब मेच्योरिटी के नजदीक रहेगा तो कुछ ज्यादा का फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। सपोज करो कि 1 साल ही बचा है मेच्योरिटी में, तो इतने का डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस आएगा तो 990 का आएगा, तब कोई भी लेना नहीं चाहिए, बोलेगा कि यार 1 साल में तो मेच्योरिटी है, मैं होल्ड ही कर लेता हूँ ना, रिडम्पशन मिल जाएगा। लाइक ऐसे समझो कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो ग्रेजुटी जब लेना रहता है, तो क्या 5 साल जब होने को आसपास रहता है, 4.5 में या 4 इयर्स में कोई छोड़ता है, यार जहां इतने दिन रुके तो 1 साल और ही रुके, कम से कम ग्रेजुटी ले लेंगे।
या किसी का 9 इयर्स हो गया, वो स्विच करना चाहता है किसी और ऑर्गेनाइजेशन में, तो बोलता है कि नहीं 10 इयर्स हो जाएगा तो सुपर एन्युटी और सुपर ग्रेचुइटी ले लेंगे सब। तो जब बॉन्ड का जब वैल्यू मेच्योरिटी की तरफ आ जाता है तो ये इस पे ये जो वेरिएशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है उसके मार्केट वैल्यू से। क्लियर? यस सर। फाइन। और जो when the required rate of return is below the coupon rate, the bonds premium decreases at its near maturity. Clear? When the required rate of return is the below coupon rate, YTM 6%, ठीक है, below the coupon rate है 7%. Scenario है the bonds premium decreases as it nears maturity. यहां पे क्या कह रहा है कि जो प्रीमियम है जब मेच्योरिटी का रहेगा तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, सेम इसी का वाइस वर्सा है। ये जो है इस वाले केस में क्या हुआ, इसमें इस वाले केस में जब मेच्योरिटी की तरफ था तो इस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये ज्यादा घटेगा नहीं, उसी तरह ये ज्यादा बढ़ेगा नहीं, इसका वैल्यू ज्यादा बढ़ेगा नहीं। मतलब कि अगर ये मेच्योरिटी की तरफ है तो इसका वैल्यू ऐसा नहीं है कि आपका फेस वैल्यू 1000 है और मेच्योरिटी की तरफ है तो ये आपका 1100 दे देगा, नहीं, ये बहुत होगा तो आपका 10 के आसपास होगा, ये बोल रहा है। उसका वाइस वर्सा है, उस थ्योरम का वाइस वर्सा है कि when the required rate of return is below the coupon rate, the bonds premium decreases at its near maturity. Clear? A bond price at its yield to maturity have inverse relationship. बॉन्ड का जो मार्केट वैल्यू है जब प्राइस बढ़ता है तो घटता है, YTM and मार्केट वैल्यू, इन दोनों में आपने कभी मैग्नेट देखा, हैव यू सीन द मैग्नेट दो मैग्नेट को कभी कभी हम लोग लगाते हैं, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल में, तो जब दोनों एक दूसरे से चिपक जाता है तो कौन सी कंडीशन में दोनों साउथ साउथ होता है या नॉर्थ होता है या साउथ नॉर्थ होता है? नॉट अपोजिट ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट में जुड़ जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे अगर ये 6% है, ये 6% पे ये सपोज करो 6% पे ये 950 दे रहा है, ठीक है, इसमें 1% ये बढ़ गया प्लस 1%, तो ये बढ़ेगा नहीं, ये घट जाएगा। सपोज करो ये 940 हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अगर ये बढ़ता है, सपोज करो कि ये 950 हो गया, इसका मतलब है कि YTM माइनस हो गया, डिक्रीज हुआ है, 5% पे आ गया, तो इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। The longer the maturity, more significant the price change for given differences between yield to maturity and the bonds coupon rate. The longer the maturity, the more significant the price changes for the given difference between yield to maturity and the bonds coupon rate. The longer the maturity, more significant price changes. Yield to maturity, मान लेते हैं कि एक बॉन्ड है, बॉन्ड ए, इसका प्राइस क्या है, क्या बोल रहा है, द लॉन्गर द मेच्योरिटी द मोर सिग्निफिकेंट द प्राइस चेंजेस। इसकी मेच्योरिटी है 6 इयर्स, ठीक है, और एक बॉन्ड बी है, इसकी मेच्योरिटी है 2 इयर्स, ठीक है। अब जो प्राइस चेंजेस होगा फॉर द गिवन डिफरेंस यील्ड में, वो किस पे होगा ज्यादा, द लॉन्गर द मेच्योरिटी द मोर सिग्निफिकेंट प्राइस चेंज। अब प्राइस बॉन्ड का चेंज हो गया, सपोज करो कि YTM था पहले 5% और अभी हो गया
1% और 6% इंक्रीज कर गया, सबसे ज्यादा जो बॉन्ड की वैल्यू है ये वाले में चेंजेस आएगा कि इस वाले में चेंजेस आएगा? कौन वाले में चेंजेस आएगा? बॉन्ड है। हाँ, 6 years. बॉन्ड में जिसकी लॉन्गर मेच्योरिटी होगी, ये वही बोला कि द लॉन्गर द मेच्योरिटी मोर सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस फॉर द गिवन डिफरेंसेस, तो ये वाले में ज्यादा फर्क आएगा। अब ये आप पढ़ोगे तो आपको और भी क्लियर होगा। नेक्स्ट आ जाओ। The drop in bond price due to decrease in YTN is more significant than the price rise from an equal increase in YTN. कौन बताएगा ये? The drop in bond price due to decrease in YTN is more significant than the price rise from an equal increase. अब देखो ये समझो, जैसे एक बॉन्ड है ए है, ठीक है, इसकी प्राइस अभी सपोज करो कि 1000 है, YTM 5%, ठीक है। अब ये 1% यहां बढ़ जाता है, जब YTM बढ़ेगा तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज करेगा, तो ये 950 हो गया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो फिर से फर्दर 1% और गिर गया, अब ये YTM जो है वो 3% है, तो इसका जो वैल्यू है 950 से हो सकता है 880 हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर यही YTM 5% से 1% बढ़ जाता है, 6% हो जाता है, और बॉन्ड का वैल्यू 1000 है, ठीक है, तो ये बढ़ेगा 50, फिर 1% और बढ़ जाता है, 7% हो जाता है, तो ये बढ़ेगा 45। सर इस तरह से बढ़ेगा, मतलब जितना जितना घटेगा, डिक्रीज करेगा, वो ज्यादा डिक्रीज करेगा जब बॉन्ड का जो YTM है वो इंक्रीज करेगा, ज्यादा इंक्रीज करेगा, तो आपका जो वैल्यू है उसका डिक्रीज ज्यादा करेगा। बट इंक्रीज का जब प्रीमियम का टाइम आएगा तो उतना प्रीमियम आपको बढ़ने से नहीं होगा। क्लियर? यहां तक क्लियर? किसी को भी प्रॉब्लम? सर एक बार वापस से समझाएंगे क्या लास्ट वाला पार्ट? बिल्कुल, इसे मिटा के फिर से बता दिया कर सकते हैं। देखो, पॉइंट ए है, इसका पे जो मार्केट वैल्यू है वो 1000 है, YTM YTM 6% है, ठीक है। इस पे ट्रेडिंग हो गई। अभी क्या हुआ कि इंटरेस्ट चेंजेस हुआ, इंटरेस्ट चेंज होने के बाद ये जो इंटरेस्ट चेंज हुआ, ये जो बॉन्ड की वैल्यू सपोज करो कि ये प्लस हुआ, माइनस लेकर चलते हैं पहले, YTM 6%, 1% रिड्यूस हुआ, ड्रॉप हुआ, YTM का वैल्यू अब 5% हो गया। जब YTM का वैल्यू 5% हुआ तो बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। तो सपोज करो कि ये इंक्रीज करके
150 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। अब फर्दर फिर बॉन्ड की वैल्यू जो है YTM है वो 4% हो गया, फिर क्या होगा, वापस से बढ़ेगा। वापस से बढ़ेगा। तो ये कितना हो गया, ठीक है, कितना हो गया। अब सिनेरियो दूसरा लेते हैं, बोलता है कि बॉन्ड ए है 1000 है, ITM 6% पे है, फर्दर ये रिड्यूस होकर के इंक्रीज करके, सॉरी ये इंक्रीज किया और ये 7% हो गया, बॉन्ड का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। कम होगा। तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे 950 हो गया, उसके बाद 1% और बढ़ गया से 8%, और कम हो जाएगा। फिर और कम हो जाएगा। अब देखो यहीं पे समझा रहे हैं, यही चीज यहाँ पे कैच यहीं पे है। अब ये पूछना सर कि ये जो वैल्यू है 2% जब नीचे फर्दर उसके गया तो यहाँ 880 आ गया, लेकिन जब 2% ऊपर गया तो यहाँ पे 95 का डिफरेंसेस आया, वहां 120 का डिफरेंस आया, यहाँ पे टोटल डिफरेंसेस कितना आया 120 का, बट वहां पे कितना आया 95 का। तो ये बोल रहा है कि जब इंक्रीज करेगा प्राइस, जैसे बॉन्ड का प्राइस अगर डिक्रीज करता YTM तो उस प्रोपोर्शनल में बॉन्ड का जो वैल्यू है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा, लेकिन जब अगर मार्केट अगर YTM बढ़ रहा है तो बॉन्ड का वैल्यू घटेगा ज्यादा, क्योंकि लोग ज्यादा खरीदेंगे। क्वेश्चन क्या, द ड्रॉप इन बॉन्ड प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन YTM इज मोर सिग्निफिकेंट, ड्रॉप किया है ना। अब price from equal YTM, the higher the coupon rate bond experience smaller percentage change, वहां पे अगर जितना भी चेंजेस होगा स्मॉलर चेंजेस होगा देन द कूपन रेट बॉन्ड फॉर द हायर कूपन रेट बॉन्ड्स एक्सपीरियंस स्मॉलर परसेंटेज। ये अगर किसी पे सर हाँ तो यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन पे लिखा है द ड्रॉप इन बॉन्ड प्राइस, तो मतलब 1000 से 950 हो रहा है, राइट। the drop in bond price due to decrease in YTM, due to decrease in YTM, तो YTM में डिक्रीज हो रहा है 6 से मतलब 5 के प्लस हो गया मतलब, राइट। 6 से 5 आ गया, ठीक है। 6 से 5 हुआ तो फिर मेरा बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा वहां पे। हाँ वो बॉन्ड की प्राइस जब घटेगी तो बॉन्ड की प्राइस तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ना पापा। यहाँ पे द ड्रॉप इन बॉन्ड प्राइस लिखा है तो उसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंट है क्या स्टार्टिंग में। द ड्रॉप इन बॉन्ड प्राइस, द ड्रॉप बॉन्ड प्राइस ड्यू टू डिक्रीज इन YTM, तो मतलब बॉन्ड प्राइस का भी ड्रॉप रहा है। more significant than the price rise from the equal increase, ये बोल रहा है कि जब ड्रॉप होगा ये ना प्राइस का तो बॉन्ड का वैल्यू बढ़ेगा। अच्छा हाँ माय मिस्टेक मैंने गलत कर दिया, बता दिया माय मिस्टेक। ये जो मैंने बताया था ना कि 950 डिफरेंस है ये, और मैंने बताया था 120, सही थैंक यू। ये आपका जो डिफरेंस मैंने बोला, फर्स्ट ये बोला, फिर मैंने बोला 950 और फिर मैंने ये बताया कि 1000 के बाद 950 और 880 120, ये नहीं, एक्चुअल में ये ज्यादा होगा, ये जो है ना ये आपका ज्यादा होगा, ये वैसे वर्षा हो जाएगा। थैंक्स फॉर द करेक्शन। High coupon rate bonds experience smaller percentage price change, ये क्लियर है, आवाज आ रही है मेरी। सर एक बार वापस से बताएंगे क्या, अभी वापस कंफ्यूज हो गए। कौन सा, ये ड्रॉप वाला पॉइंट, तो ड्रॉप मतलब 1000 से 950 हो रहा है मतलब, राइट, ड्यू टू द इंक्रीज इन YTM, मतलब YTM में डिक्रीज हो रहा है और मेरा बॉन्ड का प्राइस भी कम हो रहा है साथ में, राइट, वो पॉइंट पे। the drop in bond price due to decrease in YTM, यहाँ तक क्लियर है।
मतलब वाईटीएम भी मेरा 6 से 5% हुआ और बॉन्ड का प्राइस भी मेरा यहाँ पे कम हुआ, मतलब 1000 से 950 हो रहा अब देखो यहाँ 6% से ये क्या बोल रहा है, डिक्रीज किया, ये फर्दर 5% हो गया, है। यस। ठीक है। जब ये ओके। 5% हुआ तो बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 1000 से कितना हो गया, 950, ठीक है। एक स्टेप। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं फर्दर एक बार और डिक्रीज करता है 5% से, फिर ये 4% पे आ जाता है, तो क्या बोलता है कि मोर सिग्निफिकेंट देन द प्राइस राइज फ्रॉम इक्वल इंक्रीज इन वाईटीएम। तो ये बोला मोर सिग्निफिकेंट इसलिए बोल रहा है कि ये जो प्राइस जब जाए ड्रॉप होगा इसके बाद, दो बार ड्रॉप हुआ, यानी कि 1% और 1%, 2% डिफरेंस हुआ, पहले 5 हुआ फिर 4 हुआ, तो इस वाले में ये बोल रहा है कि जो प्राइस है, ये जो प्राइस है, प्राइस ड्रॉप हुआ है, प्राइस ड्रॉप हुआ है 6% से 5% पे आया, 1000 है, ठीक है। प्राइस ड्रॉप हुआ तो बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ेगी। यस। बढ़ेगी। अब क्या हुआ कि 6 अब 5 से फिर 1% और ड्रॉप हो गया 4%, 2%। ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू फिर और बढ़ेगी, तो मतलब यस। 11 20 कर देते हैं, ठीक है। ये आ ओके गया, सर। तो 2% का डिफरेंस आया, 1 + 1 2%, यस सर। 2% का डिफरेंस आया। ये बोल रहा है कि अगर मान लेते ये जो डिक्रीज हुआ अगर इसी प्रोपोर्शन में इंक्रीज होता है, से कि 6% था, 6% से ये 7% होता है, और बॉन्ड की वैल्यू क्या होगी, 1000 था, 1000 से फिर वो क्या हो जाएगा 950। 950, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये 7 से फिर 8%। 8% हो जाता है, 2% यहाँ भी बढ़ा, तो ये 900। ये पहुंच जाएगा, तो नीचे जाएगा तो 9.5 ही तक जाएगा, इतना ही तक जाएगा, उस प्रोपोर्शन में नहीं जाएगा। तो ये बोल रहा है कि ये जो है ना मोर सिग्निफिकेंट इसी चीज को बोलता है, क्लियर हुआ। ओके, तो मतलब द ड्रॉप वर इज इन द चेंज, राइट? ड्रॉप का टोटल मतलब यहाँ पे लॉस, चेंज समझ लॉस के की बात चलना। कर रहे हैं। सर तो जो वो वर्ड है ड्रॉप वही गलत है, वो डिफरेंस इन बॉन्ड प्राइस वर्ड होना चाहिए था उसमें, द Your हाँ डिफरेंस voice मतलब is इन not बॉन्ड। वो audible. समझ के चले, राइट? Your voice is not audible. So that the drop means the change in the bond price and difference in the bond price, right? That will be the significant word we have to assume over there. The Significant word and the price rise from an equal increase in YTM, वो इंक्रीज इसी के बारे में बोल रहा है कि अगर आपका इक्वल इंक्रीज होता है, यहाँ जैसे 2% इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट है कि ड्रॉप होगा। तो मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप इसको समझने के लिए, आपको ये समझने के लिए बुक में पूरा थ्योरम है, मैथमेटिक्स है, मैंने ओवरऑल आपको समझने के लिए एग्जांपल दिया, एग्जांपल कहीं नहीं मिलेगा। मैंने ये दिया है कि अगर इस तरह से केसेस है, ये बोलना ये चाह रहा है ये थ्योरम में कि अगर प्राइस अगर आपका जैसे डिक्रीज होता है वाईटीएम का, तो वो मोर सिग्निफिकेंट है अगर उसी प्रोपोर्शनल में प्राइस अगर इंक्रीज करता है, तो वो उस प्रोपोर्शनल में नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा, ये बोलता है। सर हमें मुझे दिक्कत कहाँ पे आई है, जो जो वर्ड ड्रॉप लिखा है तो उसका मतलब डिक्रीज समझ के चलूँ या फिर चेंज या फिर डिफरेंस समझ के चलूँ? द नहीं, वर्ड ड्रॉप इन प्राइस ड्यू टू डिक्रीज, ये तो मतलब ड्रॉप का मतलब हमने समझा कि डिक्रीज इन द बॉन्ड प्राइस ड्यू टू द डिक्रीज इन आईटीएम। ये ड्रॉप नहीं होगा, राइट, ये द राइट समझ। अब समझ में आया। हाँ मतलब इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। हाँ, the rise in bond price due to decrease in quantity more significant than the price drop. Drop from the equal increase in Yes. YTM. Great, yeah, great. Thanks for the correction. मैंने ये देखा ही। Good, I like it. मतलब मेरे क्लास में ऐसे लोग हैं, मुझे अच्छा लगा। इसीलिए मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूँ ना यार। देखो 2 में क्या होता है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, आपको अगर कुछ भी हो तो कम्युनिकेट करो ना, कोई ऐसा नहीं, मैं भी यूज कर सकता हूँ, ह्यूमन है यार। नेक्स्ट क्या है, हाई कूपन रेट बॉन्ड एक्सपीरियंस स्मॉलर परसेंटेज प्राइस चेंज देन द लो कूपन रेट बॉन्ड्स फॉर द सेम आईटीएम। ये क्लियर हुआ? सेम चीज है। हाई प्राइस में क्या बोल रहा है कि हाई कूपन रेट बॉन्ड, हाई जितना हो जाएगा, स्मॉलर परसेंटेज प्राइस चेंज देन द लो कूपन रेट बॉन्ड फॉर द सेम आईटीएम। अभी यही चीज डिस्कस किया हम लोग।
ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट है बॉन्ड विद हायर YTM आर मोर अफेक्टेड बाय चेंजेस इन YTM देन दोज विद अ लोअर YTM. Bond with higher YTM are more affected. मान लेते हैं हायर 7% है by the changes in YTM than with the lower. अगर मान लेते हैं कि कोई बॉन्ड है और वो 7% पे ट्रेडिंग हो रही है, उसका जो प्राइस है वो 950 है, ठीक है, मार्केट वैल्यू, और कोई चेंजेस होता है और एक बॉन्ड ऐसा है, बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड ए है, इसकी वैल्यू ये है, और एक बॉन्ड बी है, उसकी जो वैल्यू है वो मान लेते हैं कि ये 6% है, और उसका जो वैल्यू है से के 940 है. अब अगर यहाँ पे बोल रहा है कि बॉन्ड विद द हायर YTM आर मोर अफेक्टेड बाय द चेंजेस, तो अगर यहाँ से अगर इंक्रीज करेगा, चेंजेस हुआ 1% इंक्रीज किया, तो ये वाला ज्यादा इफेक्टेड पड़ेगा. हो सकता है इसकी प्राइस ड्रॉप होकर के 900 आ जाए, बट इसमें अगर 1% ये इंक्रीज किया, 1% इंक्रीज किया, तो ये 920 तक जाएगा, 930 तक जाएगा, ये बोल रहा है. क्लियर? यस सर. इसमें बोलिए, यहां तक क्लियर? यस सर. चलिए, यहां तक क्लियर. इसके बाद फिर चलिए आज इतना ही. बाकी आपका देखिए एक चीज इसमें बॉन्ड का जो थ्योरम है और ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन आप एक बार पढ़ लीजिएगा. अगर आपको कोई इशू आता है उसमें सारा YTM है और सारी चीजें हैं. ड्यूरेशन और मेच्योरिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग. एक बार पढ़ने के बाद अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो फिर उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. अदरवाइज फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उसको हम लोग शुरू करेंगे. ये वाले चैप्टर को पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई इशू आता है तो पूछना, बताएं. ठीक है, अब बताओ और कुछ पूछना है इससे? सर मुझे पूछना था कि एग्जाम में हम लोग को कैलसी अलाउड है और रफ पेपर भी मिलता है या फिर ले सकते हैं हम लोग? मिलता, लेकिन वापस ले लेगा आपको. ले लेता है ना, मतलब देते हैं ना यहाँ पे? क्योंकि ये YTM और एलिटीज वाले लेक्चर्स दिए थे, लेकिन उसमें सर बहुत टाइम लगता है सॉल्व करने के लिए. क्या क्या? टाइम बहुत लग रहा है सॉल्व करने के लिए, मतलब ये YTM और उसके मॉक टेस्ट. बाबा जो क्वेश्चन समझ में आता है, मैंने क्या कहा डे 1, मैंने क्या कहा कि व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी ऑन एग्जामिनेशन डे. आपको क्या करना है, जो पहले इजीएस्ट क्वेश्चन है उसको आप पहले बना लो, 30 40 50 मार्क्स पहले सिक्योर कर लो कॉन्फिडेंटली. उसके बाद फिर उससे थोड़े डिफिकल्ट पे जाओ, उसके बाद उससे वाले वाले डिफिकल्ट में जाओ. नहीं सर, मैं अभी जस्ट मॉक टेस्ट दे रहा था, उसमें मेरे को टाइम लगा, इसलिए पूछ रहा था. 30 क्वेश्चन होता है, 30 रहता है, तो उसमें से सिर्फ 15 से 18 ही होता है, बाकी के बाद मिल जाता है. परफेक्ट. आप प्रैक्टिस करो. कौन सा मॉक्स लगा रहे हो, माई ऑनलाइन प्रेप या कोई और? हाँ सर. कौन सा मॉक्स लगा रहे हैं, माई ऑनलाइन प्रेप को या कोई और लगा रहे हैं? आपका ही लगाया सर यहाँ का. तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? मतलब टाइम ज्यादा लग रहा है सर, सॉल्व जल्दी नहीं हो रहा है, तो देखो उसलिए कुछ ये है क्या है क्या? ना कि जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चंस है ना, जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं उस पर प्रैक्टिस करा रहे हैं. तो मैंने जैसे आपको जो चीजें बताया अभी, वो चीजें आप बिल्कुल उस पर प्रैक्टिस करो. और क्योंकि ये आपको फिर बाद में रिवीजन करना, रिवीजन करने के लिए आपको 1 वीक मिलेगा. तो बॉन्ड का फॉर्मूला याद रखना, जैसे मैंने जो बताया है कि बॉन्ड का जब वैल्यू निकालने के लिए आएगा, उसका फॉर्मूला पता है कैसे निकालना, PV IF A और PVIF, ये इस पे बॉन्ड का वैल्यू निकलता है. अब मैंने बॉन्ड का YTM निकालने के लिए जब बोला था, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि YTM C प्लस क्या बताया था, M minus P upon N M माइनस P upon N डिवाइडेड बाई N डिवाइडेड बाई minus 2 0.4 0.3 M M प्लस plus 0.6 P. बस ये याद रखना. ड्यूरेशन से क्वेश्चन नहीं आता, अभी तक तो नहीं आए हैं, वो लोग भी जानता है इसलिए रखता नहीं है. तो ड्यूरेशन और बॉन्ड का थ्योरम है ना, बस जो मैंने थ्योरम बताया उसको एक बार फिर से रिवीजन कर लेना, पढ़ लेना.
बॉन्ड खत्म, बॉन्ड में कुछ नहीं है। क्वेश्चन आएगा ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे। तीसरा आएगा क्वेश्चन के बॉन्ड के थ्योरम से कि ये अगर बॉन्ड का वैल्यू है तो बॉन्ड कैसे मूव करता है। तो जो मैंने अभी बताया उसका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से पढ़ लो। ये 10 थ्योरम है, टोटल 10 थ्योरम्स आर देयर। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑन थ्योरम। क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन इससे आए नहीं आएंगे, आपको बस थ्योरम रखना है। एक चीज देखो, सबसे ज्यादा जो है वो है YTM और मार्केट वैल्यू। क्यों? ये दो चीज तो मूव करता है, बाकी तो फिक्स ही है। आपको याद क्या रखना, आपको सिर्फ ये याद रखना है YTM और मार्केट वैल्यू। बाकी आपका फेस वैल्यू फिक्स है, इसमें कुछ होगा नहीं। आपका जो कूपन रेट है फिक्स है, इसमें कुछ होगा नहीं। मेजॉरिटी है फिक्स है, कुछ होगा नहीं। ये जो भी मूवमेंट है इसमें है, ये बढ़ेगा, ये तो कांस्टेंट है, यही घटता बढ़ता रहता है, वो तो कांस्टेंट है। ये बोल रहा है कि कूपन नोट से क्या सिंबल आएगा, ये आएगा, ये याद रख लो, ये याद रख लो कि अगर मान लेते ये कूपन रेट अगर मान लेते हैं YTM से, यहाँ YTM ले लो, यहाँ कूपन रेट ले लो, उसी तरह यहाँ फिर YTM ले लो, यहाँ कूपन रेट ले लो, हम पता चल जाएगा क्या हो जाएगा। उसी हिसाब से मार्केट का वैल्यू पता चल जाएगा। बाकी फेस वैल्यू से तो क्वेश्चन आएगा ही नहीं कि फेस वैल्यू क्या होगा। फेस वैल्यू से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन बॉन्ड के वैल्यूएशन पे कि फेस वैल्यू इसका बताइए, बॉन्ड का वैल्यूएशन प्रेजेंट प्राइस इसका ये है, मार्केट प्राइस ये है, तो आप फेस वैल्यू बताए, ऐसा आ सकता है। बोला मैं कोई एक वेरिएबल पूछ सकता है, तो बाकी कुछ करना ही नहीं है इसमें। ये वाला याद रखो। सर ये मॉक टेस्ट दिया था, उसमें एन्युटी और YTM के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़े कंफ्यूजन हो रहे थे। तो आप कंफ्यूजन है तो आप क्वेश्चन रेज कीजिए ना, सेपरेटली दीजिए, उसी में कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। फैकल्टी है वो जवाब देंगे आपको, नहीं होगा तो मैं बोर्ड पे बता दूंगा आपको। कुछ भी कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, यार मैंने तो इतने सारे प्लेटफॉर्म दे रखे हैं, कहीं पर भी कुछ भी पूछ लो, मैं खुद ही पूछता रहता हूँ आपसे। ज्यादा तो मैं ज्यादा कंसर्न लग रहा है कि मुझे मेरे ही एग्जाम तो रेस किया है क्वेरी मैंने ऑलरेडी, क्या। क्वेरी रेस किया हुआ है सर। हाँ तो क्वेरी रेज करके देगी फैकल्टी, उनके पास भी बकेट रहता है ना, बहुत सारी क्वेरीज रहते हैं, तो सॉल्व करके आए मिल जाएगा क्वेरी जगह। तो आप अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कर देंगे, मैं बता दूंगा। व्हाट्सएप पे दे देना, मैं बता दूंगा। आज ही अगर आप शेयर कर देना सेपरेटली, मुझे मुझे मेरे इंडिविजुअल विंडो पे डाल, मैं सॉल्व कर दूंगा, बता दूंगा। सर ये तो ड्यूरेशन वाला जो आता है क्वेश्चन, उसपे उसका वो जो टेबल ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन का, हाँ तो उसमें सर वो क्वेश्चन आता है तो उसके लिए हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा क्या? द सम ऑफ द पीवी और द सम ऑफ द वो। तो वो ऐसा क्वेश्चन देगा, वो सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आता ड्यूरेशन से बनाने के लिए, वो आएगा ही नहीं। आएगा न्यूमेरिकल इससे ही आएगा, बॉन्ड के वैल्यूएशन से आएगा। अभी तक के एक्सपीरियंस से बॉन्ड के ड्यूरेशन से क्वेश्चन नहीं आता, वो CIV के लेवल पे आता है। पढ़ना है उनको, एक क्वेश्चन देना है, बॉन्ड से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें से 2 क्वेश्चन जो थ्योरम मैंने बताया उससे आएंगे, बॉन्ड के वैल्यूएशन निकालने के लिए आएंगे, और YTM निकालने के लिए। ये 4 चीज आप पकड़ के चलो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ड्यूरेशन अगर आप देखो, ड्यूरेशन में क्या पूछ देगा कि व्हाट इज द